मजा जरूरी नहीं होता हमेशा, कभी कभी जो है Rush. अचीवमेंट भी जरूरी होते हैं। चुप हो जाओ दोनों भी। ओके दोस्तों, राइट, okay, I just want to ask, I have a question for you guys. I'm putting it in the chat. Yeah. How many hours every day you guys can put in? I'm not talking about coaching. I'm not talking about school. I'm not talking about anything, project and everything. I'm just asking the revision for the exams. How many hours in general? Okay. 1 hour, 2 hour, 3 hours. For because my calculation is based on 3 hours every day. But I want to ask you guys. Okay. So I can see. Okay, Akarshit, good evening. Ryan D'Souza, good evening. Say hello to your dad later. Okay. Okay, so I'm just asking 9th, 10th, 11th, 12th, especially 10th and 11th. Guys, you guys know 30th November is your target date. 30th November is the day that you have the first exam, that is SST. And Arnav Sharma, good evening. So 9th, 10th, 11th, 12th, especially 10th and 11th. So people are saying 2 hours, 3 hours. Some people are saying 4 hours. Okay. So I have taken 4 hours as the everyday datum. Okay. But you will have to study a little more on Sundays, because see, the basic idea of this entire event is I want you guys to realize that there is no time. There's not even 1 hour with you today to waste. I'll just prove this to you. I have done the detail, this thing which I do every time. So you guys will know now. After this class, you will say, "अरे पापा मेरे बुक का जल्दी दो मेरे पास टाइम नहीं है, मेरा टाइम अभी नहीं है मेरे पास टाइम." Okay, this will you will realize. So Saturday, Sunday, how much are you guys ready to study? Especially 10th and 11th, 10th and 12th. 9th, 10th भी बता सकते, 10th and 12th. On Sundays and holidays. Yeah. Okay, 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 okay. Right, okay. All right. So generally for 4 hours. Now people have moved to 4 hours, and there are some people who are saying 6 hours. No, nobody has come to 9 hours. I want you guys to study 9 hours on Sundays. Sir, 10 hours. श्रेयस, तुम्हारा भरोसा हम कभी नहीं करेंगे. Okay, quiet. Sir, just joking. सर श्रेयस तो 18 hours भी कह रहा था. Okay, quiet. Now, right, guys. Okay, and now I'll get back to the each and every event, each and every detail. I'll get down to this. Okay. Right. Okay, I will be discussing with you. Hi guys, good evening everyone. Sarthak. I will be discussing with you today. I have made it only the blueprint is only for 10th. 12 people can make on their own because I'll be sharing the blueprint with you. So I have gone in detail of each and every chapter and how much mark that chapter is carrying in your CBSE term 1, and how much time is available with you to now revise this. Okay. So I understand that. But so what are my assumptions? मेरा assumption क्या है भाई? अभी मेरा assumption ये है कि अभी तक आप लोगों को concept clear हो गए, concept clear हो चुके हैं, और अभी तो आप लोग सिर्फ रिवीजन के लिए बैठे हो. रिवीजन इसलिए जरूरी है कि अब तक जो आप इससे पहले जो बोर्ड जिनका बोर्ड था वो बहुत लकी लोग थे, स्पेशली जो मोदी के इलेक्शन से पहले जिनका 10 था, खूब भर भर के नंबर मिले थे. आप लोगों की किस्मत कुछ खराब है, वो इसलिए कि मोदी जी बन गए प्राइम मिनिस्टर और उन्होंने नई एजुकेशन पॉलिसी ला दी 2020 में, और पॉलिसी के अंदर साफ लिखा हुआ है कि एजुकेशन विल नॉट बी रोड बेस्ड, विल नॉट बी मेमोरी बेस्ड, विल नॉट बी रोड बेस्ड एंड मेमोरी बेस्ड, इट विल बी थिंकिंग स्किल्स. और थिंकिंग स्किल के चक्कर में क्या हो गया कि वो जो अपने को सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते थे, आएंगे अभी बाद में, लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत कम हो जाएंगे. अब आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए मिलेंगे और एक एक नंबर के लिए लड़ना पड़ेगा. पहले 5 नंबर का क्वेश्चन था, 4 नंबर मिल जाते थे, 4 पॉइंट लीजिए, और अभी क्या हर एक नंबर के लिए लिखना पड़ेगा. तो 5 अक्टूबर को एक वेबिनार हुई थी सीबीएसई की. सीबीएसई ने एक वेबिनार की थी 5 अक्टूबर को. इसके अंदर जॉइंट डायरेक्टर सीबीएसई और बहुत सारे लोग थे, और वो आप देखना. I keep watching all these things because I want to get into the head of CBSE people who are setting the paper. What is my purpose? My purpose is to help my students, my boys, and all you guys kids. So मैं देखते रहता हूँ सारी वेबिनार वगैरह इनकी. तो उसमें समझ में क्या आता है कि they are now discussing right now when we are having this interaction,
there are teachers of CBSE, different schools, who are sitting down and making the objective type questions. And they are making them in a way that they are not too easy. Okay, they may be too difficult, so but not at least too easy. So now what is the latest distribution of marks by CBSE is recall based question 46%. And out of 146 question only recall based. Assertion region questions are 22%, and which this is the biggest thing. सबसे ज्यादा बच्चे परेशान हैं इस चीज से, सबसे ज्यादा बच्चे इस चीज से परेशान है assertion region से. Okay, and then hot question will be around 32%. So if you just remain dependent on memory, you will get around 46, 50, 50, 60% marks aa jayenge aap. Okay. Because this time marks getting marks will be very difficult. Okay. Right. Before we go ahead, I just want to share something with you. तुम लोगों को सोच रहे होगे मन में कि यार ये क्या है सर है, कौन है, क्या बता रहे, why should we listen to him? What is he got to offer that my other teachers cannot give me? Okay. पहली बात तो ये they are teachers. सबसे पहली बात है there are teachers. I'm not a teacher. I'm a colonel of Indian Army. I'm a alumni of NDA, National Defense Academy, which is a very tough test for many people. Okay. So why should you listen to me? You should listen to me because I am an alumni of National Defense Academy. I cracked NDA exam 32 years back. I have been topper of half the courses that I've done. I have been instructor to officers of Indian Army and foreign armies. Why you should listen to me is because I have been instructor to JCOs, General Commission officers, Jawans, and officers a number of times. Why you should listen to me is because I have been part of my son's journey, elder son's journey, Aditya journey, who got an international scholarship from Israel, Tel Aviv University, which is much, much higher than many universities in India, including IITs. He got around 37 lakh rupees scholarship from Tel Aviv. That's why you should listen to me. You should listen to me because my son, I helped him shape his career. He passed out from BITS Pilani, and today he's working one of the top companies in the world, one of top 4 companies. This is called PricewaterhouseCoopers, PwC. Why you should listen to me is because my younger son Antriksh, who is part of this event and who's in now 10th, he's got his scholar blazer this year, and in the recent pre-med exams he has given a stellar performance. That's why you should listen to me. But this is not important. What is most important is I love kids. I love interacting with them. I love getting into their head, thinking about what are the dreams, what are they thinking, how are they feeling, what are they feeling, because I really love interacting with kids and I love teaching. And because these two are now combined in my life, and I am now a mentor. What is my target? What is my objective? My objective is I should bring out such things, such plans, such kind of programs, such way of learning that my students with minimum effort, but a come effort ke saath, they should score very high marks. And all those people who are part of CCL, my students, who are the CCL scholars, who are part of this event also, and they know that. हाँ भाई, बात मैं सही कह रहा हूँ? मेरी क्लासेस में तुम लोगों को कोई टेंशन होती है कभी? No, sir. No, sir. मार्क्स अच्छे No, आते हैं? sir. सब लोग No, sir. Okay, so my aim, what is my aim? My aim is कि जो बुक है ना, मोटी मोटी किताबें जो तुम लोगों को दे रखी हैं गवर्नमेंट ने, तुम्हारे पेरेंट्स ने, इनको ऐसा कर देना कि तुम्हें मजा आए पढ़ने. तुम क्लास, मेरे सारे बच्चे परेशान रहते हैं, 1 मिनट लेट नहीं है सर, प्लीज क्लास, प्लीज. वाई? बिकॉज क्लासेस में उनको मजा आता है. मेरा एफर्ट ये भाई, जो कुछ भी है ना बुक के अंदर, उसको उठा कर रख दो बोर्ड पे, और बिल्कुल सिंपल मेथड है, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाओ, बिल्कुल सिंपल तरीके, और ऐसे समझाओ कि एक तो बच्चों को मजा आए पढ़ने में, और दूसरा उसके मार्क्स अच्छे हैं. So that is what the target of my life is, objective of my life is now. I have earned enough money. I have had a good tenure in army. I took VRS. Okay, so right now this is the target with which I am working, and that is the entire thought process behind working out this plan of starting this 21 days that we want to save to revise so that we get good marks. Getting poor marks is not an option. वो ऑप्शन है नहीं, बोर्ड पे ऑप्शन नहीं है. ऑप्शन ये है कि मार्क्स हमें चाहिए. क्यों चाहिए? 10th के मार्क्स आपको हमेशा लाइफ में याद रहेंगे, 12th के मार्क्स हमेशा लाइफ में. आ सकता है थोड़ा बहुत डाइल्यूशन हो जाए, हमारे टाइम पे ज्यादा था, अब थोड़ा डाइल्यूशन, बट you may not remember 9th mark, 8th mark, you'll remember 10th mark. Okay, so that's why 10th marks are important. Now let us see how I have gone about this. Firstly,
The marks that are at stake are 225 marks. Why 225? Maths 40, science 40, SST 40, Hindi and English 40, which I have not written on the board, and IT 25. Okay. और अगर जर्मन को मिला मतलब लैंग्वेजेस को मिला तो थोड़ा सा और हो जाएगा. अनुभव क्वाइट अभी आज टाइम नहीं गप्पे मारने का. Okay, so now let us see how much time do we have. You guys have said, somebody said 2 hours, somebody 4 hours, so I have taken a 3 hours का वो ले लिया मैंने. ठीक है, 21 days है मेरे पास. Today is what? Today is 7th November. Today is 7th November. Today is 7th November and you have your first exam on 30th November. 30th November is not available to us. We have time only till 29th November. Now 29th is Monday and you guys will prepare for your SST exam that day. Even 28th is not available to us. So in fact we are just left with 20 days. But I have taken 28. I said ठीक है 28 ले लेते हैं, शायद से कुछ लोग पढ़ पाए 28 को अदर सब्जेक्ट. बट अदर सब्जेक्ट का मैं वो नहीं दूंगा. यू विल सी द प्लान के अंदर 28th is for SST only. Okay. Now if I am only left with 21 days and you guys going to study 3 hours, तो 2 तो संडे है इसके अंदर यार, 2 संडे इसके अंदर है भाइयों. तो अगर 2 संडे निकाल दो तो 19 डेज बचते हैं मेरे पास. 19 into 3 is equal to anybody? टेबल 93 का किसको आता है? 19 का सर 57 57. अच्छा, अब मैंने कहा यार 2 संडे बच रहे भाई, तो 2 संडे में मैं तो ये मान के चल रहा है तुम लोग 9 घंटे पढ़ पाओगे. देख लेता हूँ कितने. अभी 9 टारगेट लेके चलते हैं. 9 मत पढ़ना, 4.5 पढ़ लेना. ओके, प्लस 2 संडे के 2 संडेज 9 आवर्स 18 आवर्स में लेके चल रहा हूं. तुम कम पढ़ लेना, तुम्हारी मर्जी है. देयर इज नो प्रेशर. सीसीएल में एक ही बात है, सीसीएल में सारे स्टूडेंट्स को पता है, आई डोंट प्रेशराइज एनीबॉडी. आई विल टेल यू अ टारगेट, देयर आफ्टर तुम्हारा जितना मन करे उतना तुम करो. मैं ये बता दूंगा इसके साथ इतने मार्क्स आने वाले, तुम्हारे इतने परसेंटेज मार्क्स आएंगे. ओके, सो 57 plus 18 is equal to अनुभव सर क्या ना 75 75. Guys, you have only 75 hours. Just imagine. और तुम्हारा एग्जाम तुम्हारे सामने है. बहुत लोगों को लग रहा होगा अरे क्या दिवाली अभी तो खत्म हुई यार, एक दिन तो रेस्ट करने दे, मिठाई विठाई खाइए, दादा दादी से मिलके आया. सब कुछ भूल जाओ भी, दादा को नहीं दादी को भी, सबको भूल जाओ, बस पढ़ाई को याद रखो. ओके, इसीलिए दैट इज द रीजन आई हैव सेलेक्टेड टुडेज डे. नाउ दैट द सेलिब्रेशंस आर ओवर, प्लीज गेट सीरियस नाउ. ओके ओके भाई, यहां से चल पड़े हम. अब हम देखते हैं, पहली बात तो मैं बताऊं कि हमारे पास हेल्प क्या क्या है. भाई यार एमसीक्यू के क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यू आएंगे, तो एमसीक्यू के लिए प्रैक्टिस भी एमसीक्यू से करनी पड़ेगी. एमसीक्यू के लिए हमारे पास कौन कौन सी बुक है? एमसीक्यू के लिए हमारे पास बुक्स हैं. थैंक गॉड वी हैव द हेल्प. ओके, वी हैव हेल्प. सी हाउ वी हेल्प. सो व्हाट आर द बुक्स अवेलेबल विद अस? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर इज देयर. एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी की भी आती है, बाकी एमटीजी वगैरह की भी आती है. ठीक है. देन we have Arihant to help us. Arihant is one of the best leaders in this actually. So we have Arihant with us. Then ओसवाल भी अपने पास है. ये ओसवाल के एमसीक्यूज आए हुए, सारे के सारे एमसीक्यू से गो थ्रू करने का अपने को. ठीक है. गुरुकुल आया, गुरुकुल आया. ओके, देन वी हैव एमटीजी है. उसके बाद एग्जाम आइडिया का आया हुई बुक. ओके, देन यू हैव एडुकार्ट आया हुआ है. एडुकार्ट का भी आया है. एडुकार्ट का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों है. ये लास्ट में करना है क्योंकि आपके इस पेपर में एडुकार्ट सब्जेक्टिव है, लेकिन इस बार सब्जेक्टिव नहीं है अभी. ठीक है, ये बाद में देखेंगे. ओके, तो ये तो हमारे पास हेल्प अवेलेबल है. ओके, अब आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल रिमेंबर बाय हार्ट द मार्क्स पर चैप्टर. देखते हैं भैया, एनीबॉडी हु कैन टेल मी नंबर सिस्टम में कितने मार्क्स मिल रहे हैं आपको? कितने मार्क्स क्लास 10th? या लेट मी सी हाउ मेनी पीपल गॉन थ्रू द मार्किंग वेटेज. सर 6 मार्क्स. यस, एंड चैट बॉक्स में टाइप कर दो. चैट बॉक्स में. कार्तिक को याद है. गुड कार्तिक. चैट बॉक्स में लेट मी सी हाउ मेनी पीपल रिमेंबर. कितने मार्क्स मिल रहे हैं इस चैप्टर से हमें? 6 मार्क्स. ओके, हाउ अबाउट पोलिनोमियल सेकंड चैप्टर आ रहा है. एक्चुअली अलजेब्रा के नाम से आ रहा है. ये दोनों चैप्टर अलजेब्रा के हैं. तो इसमें बताओ कितने मार्क्स मिले भाई टोटल हम लोगों को? एनीबॉडी?
4. Yeah, actually this is both 10 marks. So it will be safe to assume कि 5 नंबर इधर मिल रहेंगे और 5 नंबर इधर मिलेंगे. 5 here, 5 here. Okay. Anybody? ट्रायंगल हमने किया था 10th वाले को ध्यान होगा. हमें बहुत टाइम लगा था ट्रायंगल. इतना डिफिकल्ट चैप्टर है ट्रायंगल. आई वुड से इट इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर. मार्क्स कितने? एनीबॉडी? ट्रायंगल कितने मार्क्स है भाई? एक मार्क्स तुम्हें पता होनी चाहिए यार, तभी तुम वेटेज दोगे उसको. या 6 marks. ट्रायंगल है 6 marks. ट्रायंगल है 6 marks. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या है दोस्तों? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर सिर्फ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट है. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट है. उसके अलावा उसके अंदर वो है अपना डिस्टेंस फॉर्मूला, वेरी इजी. और उसके अलावा अपना इंटरनल डिवीजन, वेरी इजी. वो हमने कल परसों किया. ठीक है, बहुत इजी. ये मुफ्त के नंबर है. इसके कितने मार्क्स मिले? एनीबॉडी दिस चैप्टर? एनीवन? सर 6 मार्क्स हैं इसके भी. ठीक है, तो इधर देखो कितनी मुश्किल से 6 नंबर मिलेंगे, इधर कितनी आसानी से 6 नंबर मिलेंगे. ध्यान रखना, ट्रायंगल में 6 नंबर लाना बहुत मुश्किल होगा. Here it will be very easy to have 6 marks. Okay. Now, area related to circle, actually चैप्टर का नाम नहीं दिया, मेंसुरेशन के नाम से आपको बताई गई है, बट चैप्टर एक ही है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल. वेरी इजी चैप्टर. हमने किया है, बहुत आसान है. 2 ही फॉर्मूले हैं वो, 360 अपॉन थीटा अपॉन 360 इंटू एरिया इंटू पेरीमीटर. वो वाला बहुत इजी. फ्री के नंबर. कितने नंबर है? एनीबॉडी? एनीवन? Sir, 4. 4 marks. Okay, and the last chapter in maths you have is probability. How many marks for probability? 3 marks. Okay, so भैया ये है तुम्हारा. ये इतने ऐसे नंबर डिस्ट्रीब्यूटेड है. ये चैप्टर हमें प्रैक्टिस करनी है. प्रैक्टिस के लिए हमें बुक्स की कमी नहीं. मैं खूब आई विल कीप ऑन गिविंग सैंपल. स्पेशली देखो सीसीएल वालों को तो सैंपल सारे जब चाहेंगे वो मिल ही जाते हैं. लेकिन क्या है, बाकी जो मेरे ग्रुप्स हैं ना, जिसमें मेरे दोस्तों के 2 ग्रुप हैं, पोस्टमेट्स के हैं, बाकी यार दोस्तों के ग्रुप अराउंड 10 ग्रुप्स हैं टोटल. तो वहां मेरे को इंडिविजुअली देना मुश्किल हो जाता है. अदरवाइज सीसीएल में तो एनीबॉडी हु आस्क्ड कि सर ये मेरे को नोट्स भेज दो, ये मेरे को क्वेश्चन का आंसर भेज दो, वो फटाफट भेज देता हूँ. बट बाहर मेरे थोड़ा मुश्किल आता है. तो मैंने क्या डिसाइड किया है कि दूसरे ग्रुप्स हैं उनमें सीक्वेंशियली डाल रहा हूँ. अभी मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ 3-4 आई थिंक 10 चैप्टर्स फ्रॉम डिफरेंट सब्जेक्ट्स. साइंस डाल दिया, मैथ्स डाल दिया, एसएसटी डाल दिया, इंग्लिश भी डाल दिया. तो मैं सीक्वेंशियली करता रहूंगा. ठीक है, तो वो तुम्हें मिलता रहेगा सीक्वेंशियली. सीसीएल वालों को जितना चाहिए वो मुझसे मांग लो दोबारा ना. ओके भाई, तो ये हो गया. इसका अपन कर सकते हैं और ये बड़ी इजीली डुएबल है. ओनली डिफिकल्ट पार्ट इन दिस व्हाट आई थिंक कुड बी दिस ट्रायंगल्स. ओनली ट्रायंगल थोड़ा सा लूज कर सकता है आपको 1 या 2 मार्क्स, बट ठीक, फिर भी ठीक है. अपन 40 में से 39, जैसा भी अंतरिक्ष के 39 आए इस बार 40 में से, तो 38 भी आ जाए, 39 भी आ जाए, ठीक है. मुझे नहीं लगता कि भाई, हाँ कुछ लोग होंगे जो कहेंगे सर 40 चाहिए, तो भाई 40 के लिए इधर मेहनत करने के लिए तैयार हो जाए. ओके, नाउ लेट अस सी साइंस. साइंस में क्या ब्रेकडाउन है दोस्तों, देखते हैं. अच्छा, एक बात तुम्हें शेयर करना चाहता हूं. See, you will have total 100 marks for each subject. Term 1 50, term 2 50. So how is it? It is 100 marks total. Term 1 में 50 मिलेंगे आपको और term 2 50. इस 50 में से 40 मार्क्स का तो पेपर आपका ये है और 10 मार्क्स का पेपर नहीं है. तो भाई 10 मार्क्स किसके पास है दोस्तों? सर वो Who has got the 10 marks? सर इंटरनल असेसमेंट और हमारे internal पास assessment कौन करता है? सर टीचर करेगी भैया. वो 10 नंबर टीचर के पास है. ठीक है, अब मैं आज ये अंतरिक्ष में डिस्कस कर रहा था कि अगर तुम्हारे 40 में 39 मार्क्स आए, क्या तुम्हारी टीचर तुम्हें 4 मार्क्स अफोर्ड कर सकती है देना? शी विल बी आस्क्ड क्वेश्चंस. हाउ इज इट पॉसिबल? अ चाइल्ड हैज स्कोर्ड सो वेल इन द बोर्ड एग्जाम. व्हाई यू आर गिविंग 4 आउट ऑफ 10? he has to give you 9 marks at least. Okay, and on the other hand, let's say तुम्हारे यहाँ पे तो भैया आए 40 में से you got 19 marks. You think teacher will give you 10 or 9? He will give you 6 marks. तो ध्यान रखना है, कोरिलेटेड है दोनों. इनका लिंक जो फाइनल रिजल्ट बनेगा 10th का, ये दोनों आपस में इंटरनल और एक्सटर्नल रिलेटेड है. यहाँ अच्छा करोगे तो यहाँ भी अच्छा होगा. यहाँ अच्छा करोगे, यहाँ 39 लाओगे तो यहाँ टीचर को 9 देने ही पड़ेंगे आपको. ओके, ठीक है. Right, now again science also, all these books are available.
NCERT example, Arihant, Oswal, Gurukul, MTG exam ideas, 7 sets are available with you. मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चन इनसे बाहर आ सकता है, हो सकता है एक दो कोई आ जाए, बट जिस बच्चे ने कर लिया उसको कोई टच नहीं कर सकता. नेक्स्ट, साइंस. भाई केमिस्ट्री को सबसे ज्यादा वेटेज मिला इस बार, 16 मार्क्स. 16 numbers. 16 मार्क्स है ना सार्थक. तो ये जो है ना, ये तीनों के तीनों चैप्टर, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, केमिस्ट्री को पढ़ने का तरीका है. जिस बंदे ने केमिकल फॉर्मूले याद कर लिए उसके लिए इजी है. जिसने पहले 20 एलिमेंट्स याद कर लिए उसके लिए केमिस्ट्री बहुत इजी है. हम लोगों ने सारे पोलर एटॉमिक आयंस किए हैं, सारे सारे. नाइट्रेट क्या होता है, नाइट्राइट क्या होता है, नाइट्राइट क्या होता है, सल्फेट क्या होता है, सल्फाइड क्या होता है, सल्फाइड क्या होता है, ऑक्सीजन कम होती जाती है. उसके लिए तो बहुत मस्ती है, क्योंकि सेम इक्वेशंस हैं इसमें, सेम इक्वेशंस इसमें, और ऑलमोस्ट सेम केमिकल इक्वेशंस. ओके, सो 16 मार्क्स आर हियर फॉर यू गाइस. यहां प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम है यहां बायोलॉजी में. देयर आर 4 डिफरेंट चैप्टर्स, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन. बट एनसीईआरटी में एक ही चैप्टर बना रखा है उसको, लाइफ प्रोसेस. अच्छी जो बाकी सब बुक्स हैं, श्रीजिन वगैरह की बुक्स हैं, उनमें सब में अलग अलग चैप्टर है सबका. इवन अरिहंत में अलग इसमें 6 चैप्टर है. numbers आ रहे हैं. तो इसमें है टोटल मिला के 10 मार्क्स. 10 मार्क्स. ओके, नाउ फिजिक्स में जिस बंदे ने लाइट वाला चैप्टर समझ लिया, लाइट कन्वेंशन समझ लिया, और लेंस फार्मूला और वो अपना मिरर फार्मूला समझ लिया, उसकी तो बल्ले बल्ले, वो तो खींच जाएगा 14 मार्क्स. क्योंकि यहां कोई भी न्यूमेरिकल, यहां कोई टेंशन नहीं है. ये इतना इजी चैप्टर है कि मेरे ख्याल से मैंने 2 क्लास में खत्म कर दिया था. इसका वीडियो है गाइस. ऑल दीज वीडियोस आर अवेलेबल फॉर क्लास 10th 9th 8th 9th 8th 6th 6th 7th 8th 9th 10th, सारे वीडियोस अवेलेबल हैं YouTube पे. जिसको देखना देखो. थोड़ा सा कम स्पीड तुम्हें मेरे को हल्का लग रहा है कि हालांकि मैं बहुत तेज पढ़ाता हूँ, कभी धीरे कभी तेज पढ़ाता हूँ, लेकिन क्या अगर बोलने का थोड़ा सा आगे पीछे करके यू गाइस कैन वॉच इट. माय सजेशन इज वॉच इट ऑन टीवी, नॉट इन मोबाइल. ऑलराइट, लाइट इज अ प्रॉब्लम एरिया. लाइट के अंदर न्यूमेरिकल बहुत गलत होंगे, स्पेशली साइन कन्वेंशन की वजह से. तो जिन लोगों को साइन कन्वेंशन नहीं पता, आगे की क्लास में मेरे से पूछ सकते हो, आई विल एक्सप्लेन दैट. इसलिए मैं प्रैक्टिस कराऊंगा. This we are going to practice a lot. Numericals I'm going to make you practice a lot, because light वाला चैप्टर के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम साइन कन्वेंशन वाले क्वेश्चंस का. Okay, so these are 14 marks. 14, 10 and 16. 16 में आपको 3 चैप्टर करने हैं केमिस्ट्री के, बायोलॉजी में 10, और दिस इज स्लाइटली इजी. अच्छे से नंबर मिल सकते हैं इसमें, थोड़ा अगर ध्यान दिया हमने. नाउ लेट अस सी एसएसटी. एसएसटी में दोस्तों नेशनलिज्म यूरोप बहुत अच्छे से किया हमने, बहुत डिटेल में किया है. सार्थक याद है किस किस का, मतलब सारे सीसीएल वालों को याद होगा. नेशनलिज्म यूरोप इतने बड़े से किया हमने. यूनिफिकेशन जर्मनी, यूनिफिकेशन इटली से लेके सब, यूनिफिकेशन यूके, नेशनलिज्म, सब बहुत आसान चैप्टर है यार, कुछ नहीं है इस चैप्टर के अंदर. तो इसको कर लो, अच्छे से मार्क्स मिल जाएंगे. 10 मार्क्स है, एक ही चैप्टर है बस. Sir, repeat again. That's हैं? Somebody was saying something? So he was asking to repeat. I'm saying nationalism in Europe वाला जो चैप्टर है ना अपना, that is 10 marks and that is a very easy chapter. जिसको डिफिकल्ट लगता हो, मेरा YouTube पे चैनल है, 4-5-6 क्लासेस है, उसको फास्ट स्पीड पे देख लो. तुम बोलोगे सर अब तो बस पूछ लो क्या पूछ रहे हैं. This is that kind of chapter, very easy chapter. Lengthy है but easy to remember. Marks, Sir, which chapter? 10 marks. Nationalism in Europe. So YouTube पे चैप्टर आपको 1. हाँ, Okay, sir. हिस्ट्री चैप्टर 1. ओके, मैं एक काम करता हूँ, सिर्फ एक किसी वीडियो का ना लिंक मैसेज बॉक्स में, मैसेज में डालता हूँ. यू गाइस कैन कॉपी दैट ना. जस्ट अगर एक मिल गया आपको तो फिर बाकी सारे आराम से मिल जाएंगे. ओके, आई एम जस्ट सेंडिंग वन लिंक ऑफ क्लास 10th. Just give me a moment. Just copy that and then if you subscribe, you'll get all the what do you call, playlist. Okay. Or I think we can is there a process that I can copy the link itself of my channel. कोई बोल रहा था मेरे को कि there is something like that. All right. Anyway, right. Class 10th playlist. I'll just pick up one any this thing topic and कलरफुल वर्ल्ड वाला मिल गया मेरे को. मैं
Yeah, just a sec, guys. Okay. Yes. चल जल्दी Thank मिला क्या? सर मैंने प्लेलिस्ट और चैनल दोनों की डाल दी। डाल दिया उसमें चैट बॉक्स में? गुड. यस सर। Priyansh, what will I do without you? Thank you so much. Okay. So nationalism Europe history chapter 1 10 marks. Easy marks है भाई, छोड़ना मत, आराम से आ जाएगी, कोई टेंशन नहीं. रिसोर्स डेवलपमेंट ज्योग्राफी में 3 चैप्टर है, रिसोर्स डेवलपमेंट, वाटर रिसोर्स एंड एग्रीकल्चर. अभी एग्रीकल्चर वाला चैप्टर थोड़ा दिमाग की दही करने वाला है. इट इज दैट वो ना कॉटन, what kind of this which weather, which location, what kind of soil. ग्रेन फार्मिंग. ओके. सो एग्रीकल्चर थोड़ा सा है, अदरवाइज वाटर रिसोर्सेज आसान है, मैप वर्क है इसके अंदर थोड़ा सा, उसके इसके भी वीडियो देख लेना. ये यहाँ भी 10 मार्क्स, 10 नहीं आए तो बड़े 1-2 चला जाएगा. एग्रीकल्चर वाला चैप्टर में 1-2 मार्क्स जा सकता है. What kind of a crop can be grown into a climate which has got clear 210 days of sunny light, sunny days? Anybody who can answer this? Which crop can be grown in the areas which have got 210 clear days? What sir? Oh, Yuvraj, mute हो जा, तेरे लेवल का क्वेश्चन ये. Which crop can be grown easily in the climate which has got 210 days of sunny days? Anyone? Sir, can you repeat? Sir, cotton 210 frost-free days. Cotton is a crop which can be grown, which can only be grown in the areas where there are 210 days in a year which are रेन फ्री, टोटली सनी. ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन आए, हो सकता है इधर कुछ एक आधा क्वेश्चन चला जाए भाई. तो ये है आपका 10 मार्क्स इधर. ओके. अब पावर शेयरिंग और फेडरलिज्म इतनी आसान चैप्टर है, मतलब ये तो मैं कहता हूँ फ्री के नंबर बढ़ रहे हैं. वो एक तो वो वाला अपना वो फ्रांस के ऊपर कौन सा कंट्री हो, बेल्जियम. एक तो बेल्जियम की कहानी उसमें, श्रीलंका. बेल्जियम और श्रीलंका दोनों की दोनों कहानी, वो भी मैंने मेरे ख्याल से वीडियो है और नोट्स भी मैंने तुम लोग भेज रखे सबको. easy बड़ा chapter. आसान चैप्टर, ये फ्री के चैप्टर, फ्री के नंबर है. एंड ऐसे ये पालमपुर है ना, इको में क्या है, डेवलपमेंट एंड सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये भी दोनों बहुत आसान है भाई. पूरे के पूरे चैप्टर में, अच्छा पूरे के पूरे सिलेबस में कहीं दिक्कत है तो एग्रीकल्चर थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा, और ये लाइट वाला चैप्टर थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है, और ये ट्राइंगल. लेकिन मैंने प्रॉब्लम एरिया की बात नहीं करी अभी आपसे, क्योंकि क्या हो रहा है, एवरी पेरेंट, एवरी चाइल्ड, दे आर ऑल बिजी थिंकिंग अबाउट साइंस एंड सर साइंस पे ध्यान देना है, मैथ्स अरे बिल्कुल आपके फ्यूचर के लिए जरूरी है. मैथ्स Excuse me, sir. हाँ कार्तिक सर आपने शायद मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री मिस कर दिया. हाँ, ट्रिग्नोमेट्री मिस हुआ मेरा, नहीं हाँ मेरा मिस हुआ, सही है. ट्रिग्नोमेट्री इज 5 मार्क्स. ट्रिग्नोमेट्री इज 5 मार्क्स. ट्रिग्नोमेट्री इज 5 मार्क्स, बिल्कुल सही बात है. यस, ट्रिग्नोमेट्री इज 5 मार्क्स. ओके, थैंक्स कार्तिक. ओके दोस्तों, अब प्रॉब्लम, लेकिन मैं जो है इसलिए वो उस पर अभी आ रहा हूं. प्रॉब्लम होगी कि आपके साइंस, आपकी इंग्लिश और हिंदी के मार्क्स भी जुड़ेंगे ओवरऑल में, और वो मार्क्स खराब आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि इंग्लिश हिंदी कोई बच्चा पढ़ता नहीं है, ठीक है, और पढ़ते भी हैं तो उतनी शिद्दत से नहीं पढ़ते, उतनी एफर्ट लगा के नहीं पढ़ते. उनको लगता है कि चल ठीक है यार तो हो जाएगा, पास हो जाएंगे, बट डोंट डू दैट प्लीज. मेरे पास स्पेस नहीं था यहाँ पे, आई डोंट वांट टू गेट इनटू रबिंग इट ऑल ओवर अगेन, अदरवाइज मैं लिखता उसके अंदर क्या है वो भी इसमें डिस्कस कर लेते हैं. देखो, इंग्लिश के अंदर पहली बात है, इंग्लिश के अंदर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, दैट इज 10 मार्क्स. टू पैसेज विल कम एंड यू विल हैव टू आंसर क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैट. उसके अंदर एक फैक्चुअल आ जाएगा, एक व्हाट इज द नेम गिवन टू दैट, समथिंग, you know, which somebody is just thinking about it, philosophical kind of thing, that is 10 मार्क्स. ग्रामर सारी मिला के 10 मार्क्स है, और तुम्हारे लिटरेचर के 20 मार्क्स. वो मैंने जो अभी मैं डिस्कस करूंगा तुमसे, प्लान के अंदर सारा डाला हुआ है, कब पढ़ना है उसको. उसके अलावा हिंदी के अंदर भी अपठित गद्यांश 2 हैं, और वो 10 मार्क्स के. यू विल गेट अ चॉइस ऑफ 4, 2 करने होंगे. ग्रामर के 4 पार्ट हैं, पदनाम है, समास है, सेंटेंस फॉर्मेशन, सेंटेंस वो है, मुहावरे.
ये भी आसान है, ठीक है। ये मैं अपने स्टूडेंट्स को भी कराऊंगा, सीसीएल वालों को एग्जाम से बीच बीच में कराऊंगा मैं, क्योंकि हिंदी में मैं नहीं चाहता कि तुम लोग साला मैथ में तो 95 लेके आ रहे हो, हिंदी की में 55 सारी परसेंटेज डाउन हो जाएगी, वो नहीं चलेगा। और उसके बाद लिटरेचर की फिट आईटी का देख लेना, आईटी के अंदर 3 दिन की छुट्टी है, तो मैंने अपने प्लान के अंदर आईटी लास्ट में रखा है। आईटी अगर तुम्हें लग रहा है बाकी सब्जेक्ट तुम्हारे नहीं हो पाए हैं तो आईटी को साइड कर देना फिर, और उस वक्त वो सब्जेक्ट कर लेना। आईटी से पहले तुम्हारा 3 दिन की छुट्टी है। 30 नवंबर को एसएसटी है, उसके बाद फर्स्ट को कुछ संडे नहीं, फर्स्ट को नहीं एग्जाम, सेकंड को तुम्हारा साइंस एसएसटी, उसके बाद सेकंड को साइंस है, थर्ड को होम साइंस है, जिनका होम साइंस है तुम लोगों की छुट्टी रहेगी, फोर्थ को मैथ्स है, उसके बाद फिफ्थ 6 7 छुट्टी है, 8th को आईटी है शायद, या 7th को आईटी है, 8th को इंग्लिश है, फिर हिंदी है, तो लगातार ये पूरे बस 3 दिन मिल रहे हैं आपको आईटी में। आईटी के लिए थोड़ा सा टाइम रख सकते हैं। ओके, ये बात होगी अभी इसकी। Before I go to the plan proper, I'll just discuss with you the plan. Anything you guys want to ask me? Anything? What is going on in the mind of the people who are setting the paper? OMR sheet से practice करनी है अपने को Sundays को। Sundays को I'll put sample papers. I'll give you sample papers on which every subject wise you have to sit and do practice as you will do in the exam. Without water, without going to loo, without going to washroom, sit as if you're sitting in the proper exam with time. Answer key I will send in the evening. I'll not send along with the exam. I'll send it in the evening so that you can check your papers. Okay. So that is for the sample papers. Sundays are for the sample papers. Okay. And if something comes to me, if there is a webinar by the CBSE or some video release or some information release, that I'll keep on sending you in the group. There may so happen that I may plan an event like this maybe a week before the Sunday before the final exams. But if it's necessary, otherwise I'll not waste your time. Okay, any questions guys? Anybody wants to ask me anything? All right, let's just go over the plan. I'll share. Yes sir. Sir IT का सर 25th of November को है ना? नहीं IT तो 9th 4022 8th को है IT सर 25th को भी है एक आईटी का। ये सर 25th को है। वो प्रैक्टिकल होगा तुम्हारा, ये आईटी को दूसरा है, प्रैक्टिकल होगा सर। प्रैक्टिकल तो स्कूल में होगा ना अपनी माइनर सब्जेक्ट में है सर ये। अच्छा माइनर वाला होगा वो, ठीक है। अदरवाइज जो मेन लोग जिनके पास आईटी है उनका तो बाद में होगा, ठीक है। और बताओ एनीथिंग एल्स बिफोर आई गो टू द प्लान? Sir, good evening. I am Ruchika. My daughter is in class 10th. Just one query regarding this minor paper. Are they being included in the percentage minor subjects marks? Ma'am, I have searched on the CBSE. I'll search it again. So far, it is not clear. There is some, I believe IT is being used to compensate for the student who are going to fail. So let's say somebody is failing in the major subjects and the IT has got a good performance. There's some kind of a mechanism to compensate so that students can be promoted to the next class. Right, because my daughter was also mentioning that it's not important. The 5 subjects are more important. That's what she was mentioning. That's true. That's true. Yes sir, they replace it. Yeah. Right. So that mechanism. So Okay. Thank you, please. Yeah. Somebody else is also asking something. Yeah. Go ahead, please. Yes, sir. Sir, I'm Arvind Gupta. And Your voice is not clear. Can you put the message in the message chat box? Yeah. Anybody else? Yeah, I'll see your message. Yeah, please put it in the message. Sir, is computer application and IT different? Okay, Sarthak, give your question. सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि कंप्यूटर एप्लीकेशन और आईटी एक दूसरे से अलग है क्या? नहीं, IT is the normal paper. Information technology, computer application is part of that. Okay. सर कोड था ना कि कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट कंप्यूटर का कोड है 402 ये सब। यस सर, दोनों के पेपर अलग-अलग डेट मैं ना चेक करके मैसेज डाल दूंगा। ये जो तुम लोगों को जो आईटी कंप्यूटर एप्लीकेशन है, इसी को आईटी बोलते हैं, ठीक है। वो जो तुम्हारा जो 8 दिसंबर को पेपर है कंप्यूटर एप्लीकेशन, वो आईटी यही है, यही कंप्यूटर एप्लीकेशन, यही आईटी। ओके, या एनीबॉडी एल्स? ओके सर अपूर्व, पता है कि कोई सब्जेक्ट जो कंप्यूटर रिप्लेस करता है, सारे तो जैसे कोई
important होंगे. Actually, I tell you, it will not replace. Firstly, it cannot replace. Others are being held for let's say now 40 marks. This is for 25 marks. Most maybe they have a practical afterwards. But there is a lack of clarity on this. It is used for the people who are going to fail. उनको help करने के लिए ये IT का पेपर रखा जाएगा. Okay, but I am very sure none of the people who are here will have to worry about passing. You have to worry about crossing 90%. That is the target. Okay. Now I am just let me start with the okay. Sir, your voice Yadra, is cracking. Okay, guys, each student should make something like this, whether he belongs to class 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th. Okay, I'm just sharing this. Let us go through this. You can take this or you can make your changes. You can make changes as per your. Okay, this is that offer letter I was telling about my son. $50,000 is the scholarship he was given, and 50,000 around 37 lakh rupees. So what I'm trying to say is not that I'm great. What I'm saying is things are achievable. You can achieve international scholarships. You can achieve national level competitions. IIT, NIT. IIT is a different story. I'll discuss something that later. All right. Okay, so I'm starting with the 8th November, Monday. Okay, next 21 days for all students and especially for CCL scholars, guys, please take it seriously. This is a matter of life and death, and I'm not saying it lightly. Every mark counts. Every mark is important, right? So I have divided the day in two study blocks: study block A and study block B. That is to say 90 minutes and 90 minutes, 1.5 hours, 1 hour. I am taking the 3 hours you will study, and that is not including your project making and school and coaching and everything. Just this is 3 hours, you and your books, your revision, okay, your notes, and most of that is practicing MCQs, which I'll keep on posting. Okay, so 8th November, you can start your day tomorrow with Sir, the someone number is system. sharing his or her screen. Rudra Pratap Singh. Yes, sir. Okay. Your screen is not sharing some Rudra Pratap Singh. Yes, sir. All right, my screen is not being shared. No, sir. कोई रुद्रा प्रताप सिंह से कोई कर रहा है. Rudra, तुम stop कर दो presentation. Okay, now, okay, now can you see? सर जो प्रेजेंटेशन का जो होता है ना उधर रिज्यूम प्रेजेंटेशन पर क्लिक कर दो. Presentation click कर दूं. Presentation. Okay, resume presenting. Okay, now see, guys, can you see this now? Is it visible now? Yes, sir. Okay, Yes, so we sir. can start with Yes, sir. math chapter 1 number system. बट देखो तुम्हारे पास 90 मिनट से भाई एक चैप्टर के लिए इसको रिपीट करने का टाइम नहीं मिलेगा, इसीलिए एक आज की ये इंट्रोडक्शन जरूरी था. यू गाइस हैव टू रियलाइज कि हमारे पास टाइम नहीं है. ओके, फिर कल कॉम्प्रिहेंशन हिंदी पैसेज प्रैक्टिस करने का है. बुक्स से प्रैक्टिस करने का, ये जो एमसीक्यू बुक्स आई हुई पूरी की पूरी इनसे करना है. ओके, next chapter 2 chapter science. next day you can do science. I have written the marks also कि वो 90 मिनट्स में आपको कितने मार्क्स मिल रहे हैं, कितने मार्क्स की प्रैक्टिस आप कर रहे हो. 6 मार्क्स की प्रैक्टिस 90 मिनट्स. Okay, the second block again I have given to Hindi. 10th November I have gone for polynomials, that maths chapter 2. I made a combination on purpose. So what I've done is I feel students find it difficult to study maths and like later. पहले तो मैं कह रहा हूँ पहले मैथ्स कर लो यार, तुम्हारा फ्रेश माइंड है, पहले मैथ्स कर लो. उसके बाद में हल्के सब्जेक्ट रखे हैं, कभी इंग्लिश रखा है, कभी हिंदी रखा है, कभी एसएसटी रखा है. साइंस और मैथ्स को इकट्ठे नहीं रखा है. पहला सब्जेक्ट थोड़ा हैवी रहेगा मैथ्स का, दूसरा सब्जेक्ट थोड़ा हल्का, इस तरह से प्लानिंग किया. ओके, yeah. So around 10th maths polynomials 5 marks. Nationalism in Europe, it is 10 marks. But we have got only one day. बाद में मंडे को कर सकते हो, लास्ट मंडे आएगा तब इसका रिवीजन कर सकते हो. लाइफ प्रोसेस है, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, 2 चीजें कर लेना एक दिन. all four you will not be able to do. Okay, and then Hindi grammar I have said you give due weightage to Hindi also. मार्क एक भी जाना नहीं चाहिए. मार्क को चाहे हिंदी का जा रहा हो चाहे मैथ्स का जा रहा हो, बराबर लॉस है. पदबंध and sentence transformation. 12th November linear equations, variables, and then English after that. 13th November acid basis salt. This is the third chapter, second chapter of. Okay, ये गलती से लिखा हुआ है, ये chapter 2 है साइंस का.
and then geography, resource and development 5 marks. Okay. 14th November, using OMR sheets, actual exam practice from sample papers and 6 subjects. So all those people who can study for 9 hours, please distribute these papers. मॉर्निंग में 2 कर लो, सुबह उठ के 7 o'clock को कर लो, आधे घंटा ब्रेक लेके एक और कर लो, उसके बाद चाय वाय पियो अपना 11 o'clock 12 o'clock उसका एक और कर लो, लंच करो, थोड़ा रेस्ट करो, लंच के बाद फिर एक और कर लो, इवनिंग में एक कर लो और एक रात को कर लो. 6 पेपर पॉसिबल है, डूएबल है, इट इज पॉसिबल. ओके, और ओएमआर शीट के साथ करना है उसको प्रैक्टिस, राइट. और any leftover portion like I'm saying can be done in the IT study block जो बाद में आने वाले. 5th को मैंने चैप्टर ट्रायंगल्स का डाला है, ग्रामर समास डाला है, लाइट. 16th को आएगा लिटरेचर इंग्लिश, 17th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. Second block I have given to geography. Okay, now let us look at the second second part of the sheet. 18th life processes, the remaining part. Then Hindi, you can read poem Kabir and Mira in the second part because that will be easier. 19th maths, area related to circles, literature, movements. Then you can do literature. Okay. 20th science का third chapter you can do for 5 marks, that is, and then agriculture is 2.5 marks. मैप जरूर करना है, सबसे मैप बच्चे छोड़ देते हैं. मैप इज द प्लेस वेयर यू आर लाइकली टू लूज मार्क्स, एंड मैप इज द इजीएस्ट. मैप पे किसी को कुछ पूछना है मेरे से बात करके पूछो, मैं आई विल टीच यू मैप, वेरी इजी. 20th नंबर योर सेकंड संडे. जिन लोगों से 9 आवर्स नहीं हो रहा है ना पहले संडे को 4.5 कर लो यार, और बाकी के पेपर है. बट एग्जाम से पहले, एक एग्जाम से, एक्चुअल एग्जाम से पहले यू हैव टू सिट प्रॉपर्ली. व्हाई आई एम टेलिंग दिस, व्हेन माय सन वाज प्रिपेयरिंग फॉर आईआईटी, he used to sit like that for 3 hours. IIT advanced, JEE advanced paper, as you guys are aware, 6 hours. That time to 6 hours, I don't know. अभी भी 6 hours है. वो 3 घंटे ऐसे ही बैठने का है, और उसी वक्त बैठना है जब एग्जाम है. जब एग्जाम है तभी बैठना है. 9 o'clock एग्जाम है अगर IIT का, या 10 o'clock है, या तुम्हारा बोर्ड का एग्जाम है, तभी बैठो. जिस दिन, उस दिन जैसा नाश्ता करोगे ऐसा नाश्ता करके बैठो, पानी रख के बैठो, टॉयलेट नहीं जाना, बिल्कुल एक्चुअल एग्जाम का प्रैक्टिस. सबको बोलो मुझे डिस्टर्ब नहीं करना, मोबाइल हटा दो. It should be actually exam practice. Then you'll come to know some things which you have to take action on. Right. Then 22nd November मैंने IIT को दिया यह पूरा का पूरा ब्लॉक. इसमें तुम्हारा अगर IIT बाकी सब्जेक्ट सही चल रहे हैं तो कर लेना, नहीं तो दूसरे सब्जेक्ट से रिप्लेस कर लेना. ओके, प्रोबेबिलिटी एक मेरे को लग रहा है मेरे से कहीं एक चैप्टर छूट गया ट्रिग्नोमेट्री का, सो दैट कैन बी फिटेड ऑन 22nd November. IIT पूरा काफी लंबा चौड़ा है, तो IT I already discussed with you how to deal with IT. 24th November कलरफुल वर्ल्ड है, और लाइट का जो न्यूमेरिकल्स है, तो डू न्यूमेरिकल्स एंड कलरफुल वर्ल्ड 9 मार्क्स आए. SST के पावर शेयरिंग फेडरलिज्म दोनों के दोनों एक ब्लॉक में हो जाएंगे, 10 नंबर फ्री के. हिंदी लिटरेचर बचा हुआ है आपका, हिंदी लिटरेचर का. 26 नवंबर इंग्लिश लिटरेचर को कुछ टाइम दिया, थोड़ा इजी डे रखा है ताकि बी हाइव हो जाए, आपके फर्स्ट चैप्टर हो जाए, बीआई वाले 4 चैप्टर जो हिंदी का कंप्लीट रिवीजन उसमें कर सकते हैं. 27th को इंग्लिश के जो बचा हुआ चैप्टर है बीआई के, पोएम, ऑल 4 पोएम्स यू शुड डू. एंड देन एसएसटी का लास्ट चैप्टर जो इको का, जो इजी है. अब लास्ट में मैंने एसएसटी इसलिए रखा है ताकि तब अपना एसएसटी पे चलते रहे अपन. राइट. संडे जो है ना, तीसरा वाला संडे, उस संडे को मैंने बोला है कि आप फिर अभी एसएसटी पे ध्यान दो, बिकॉज ट्यूजडे को एग्जाम है, तो संडे को एसएसटी, ट्यूसडे को एग्जाम है, तो संडे को एसएसटी करो और मंडे को एसएसटी करो. ठीक, और थोड़ा रेस्ट भी करना ही पड़ेगा. ये इतना वो कर रहे हो तो मंडे को थोड़ा रेस्ट भी करना, अच्छे से सोना, अच्छे रिलैक्स करना, थोड़ा करना, माइंड को रिलैक्स करना, थोड़ा मेडिटेशन करना, योगा कर लेना, मन करता है मेरे से बात कर लेना, किसी को अगर कॉल करके बात करनी. ठीक है. सो दिस इज व्हाट आई एम प्रपोजिंग. सो इफ यू कैन सी ऑलमोस्ट एवरी चैप्टर हैज बीन इंक्लूडेड, बट द प्रॉब्लम इज वी डोंट हैव मच टाइम. मैथ्स का एक चैप्टर 90 मिनट्स में करना उसी के लिए पॉसिबल है जो पहले पढ़ चुका, अच्छे से कंसेप्ट समझ चुका और बस प्रैक्टिस कर रहा है, और वो क्वेश्चन देख रहा है कि कौन से क्वेश्चन है जो मुझे अभी भी नहीं आते. ओके, so this is the plan for class 10th. Now class other classes can make on their own, and all those people who want to make on their own, they can make it, but this is a broad guideline, and what I'm saying is everybody should do this. यार अगर तुम्हें नंबर चाहिए ना, तो हर एक नंबर का देखना पड़ेगा कहां से आ रहा है नंबर, that mark is coming from where I'm likely to lose those marks. So this is a blueprint that I've created. I'll just share it
with you guys on the different groups that you are part of. And any doubts, you are most welcome. Okay. Any clarifications? Haji, anybody? Okay. Yeah, ask me the clarification so that in 1 or 2 minutes, then otherwise I should end the meeting. Yeah. Sir, clear, sir. No doubt. Okay. Sir, no doubt. Anybody? No doubts? Anybody? Understood, sir. Understood? All right. Okay. Right. Right then, guys, I'll end the meeting. You will find the video of this meeting on the YouTube channel. Any doubt comes to your mind, you can always contact me. Okay. Rudra Pratap Singh, who want to join CCL? CCL is very easy to join. Whomever has given you my number, you just send a SMS to me. Send me your number. I'll tell you the procedure to join CCL. CCL is now online. All the classes are being conducted online, and later it will shift to hybrid when you open the institute. Right now, institute is not. So we are doing all the classes online, and our online classes are very good. Kids are happy, and I'm also very happy with the performance that we are getting. All right, guys, no doubts. Good night, and thank you for your time. I wish you all the best. Bye, everyone. Thank you, sir. Thank you, Bye. sir. Bye, Thank you, sir. Bye. Bye. Oi, chalo, jaldi, guys, leave it. Wait. Good night, everyone. Bye, Anubhav. सबके साथ Raghav, bye. Good night. मैं निकालूंगा क्लास से. Good night. चलो, okay. Bye, guys. Bye. Adya, bye. Mahi, bye. Abhyuday, bye. Ritvik, bye. Bye. Chalo, bye. Leave the meeting, guys. Bye. Chalo.